Today we will discuss the first unit of the class 11th, some basic concept of a chemistry and some introductory part of the chemistry we will discuss here. Okay, the first introductory part is the matter of this chapter, the nature of matter. What is matter? Anything which has a mass and occupies space is called matter. We know that. Like pen, pencil, chair, car, bus, truck, anything is there which has a mass and occupies space is called matter. We can classify the matter into two categories. One is the physical classification and second one is the chemical classification. Okay? So we can classify as physical and the chemical. Physically, they are classified as solid, liquid and a gas. And chemically, they are classified as mixture and the pure substance. What is solid? So some of the property we know that any substance we have a fixed mass and a fixed shape and a fixed volume is called solid. Substance with a definite volume but there is no definite shape is called the liquid, and the gas neither have a fixed shape nor fixed volume is called gas. Generally the properties we are discussing is interparticle space, interparticle attraction. The interparticle attraction is maximum in a solid and minimum in a gas. Interparticle distance is maximum in the gas and minimum in the solid. Okay? Due to strong attraction and the compact structure, solid have a fixed shape and a fixed volume. Okay? And some other property like the density, if you compare, तो density को compare अगर हम कर रहे तो order is solid, liquid and the gas. Why? Because we know that कि solid जो है compact है, more amount of substance enter करेगा into a volume, definite amount of volume. So solid is more denser than liquid and liquid is more denser than gas. Next property is the compressibility. So we know that gas is more compressible than liquid and liquid is more compressible than solid. Because on the compression क्या होता है, जो इंटरपार्टिकल स्पेस है, जो स्पेस इंटरपार्टिकल स्पेस ये डिक्रीज करता है. और इंटरपार्टिकल स्पेस किस में ज़्यादा डिक्रीज करेगा? जिसमें ज़्यादा इंटरपार्टिकल स्पेस होगा. तो गैसेस में इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा इंटरपार्टिकल स्पेस क्या होगा? कम होगा या कंप्रेस्ड होगा. इसीलिए कंप्रेशन सबसे ज़्यादा गैस का होता है, उससे कम लिक्विड का होता है, सबसे कम सॉलिड का होता है. क्लियर? तो दे आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Another classification, chemical classification. So on basis of chemical classification, matter are classified as mixture and the pure substance. Mixture are classified as homogeneous and heterogeneous mixture. And the pure substance classified as an element and the compound. Compound further classified as organic compound and inorganic compound. Element further classified as metal, non-metal and the metalloid. And mixture classified as homogeneous and the heterogeneous mixture. So they are the overall chemical classification of the matter. Now one by one we will discuss the thing. First is the element. So what is the element? An element is defined as a pure substance that consists of only one type of particles. एलिमेंट क्या होता है? जो किससे बना होता है? सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है. सपोज इफ यू टेक हाइड्रोजन, इट मीन्स ऑल द पार्टिकल्स किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे. सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास. इफ यू टेक नाइट्रोजन, तो कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एटम. इफ अगर आप पूरा एक नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं तो उसमें सब एटम एक जैसे होंगे. तो एलिमेंट फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटेलाइट्स. व्हाट इज मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट सबको पता है. व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. व्हाट इज एटम? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो कैसे एग्जिस्ट करता है? मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. लाइक सोडियम, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेनी आर. मे और मे नॉट, है ना. अब यहाँ मॉलिक्यूल में हम कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट particle of an element or the compound which has an independent existence. This is the basic difference between the atom and the molecule. एटम में कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, बट दे आर इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है.
ठीक है। मॉलिक्यूल दो तरीके के हमारे पास है, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक क्या है, जिसमें कि सेम काइंड ऑफ एटम हो, और हेटेरोएटॉमिक वो होते हैं जिसमें कि एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के हो। तो होमोएटॉमिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बोथ द एटम ऑफ द हाइड्रोजन, बोथ द एटम ऑफ द ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक लाइक वाटर, जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट या मोर देन टू एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं। तो दे आर होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। कंपाउंड, compound are the pure substance containing more than one kind of element। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो किससे बना है, फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम व्हेन द टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine in the fixed ratio by mass, the molecule of a compound is obtained। this is especially the fixed ratio by mass। ठीक है, if the substance combined in any ratio by mass, that is called mixture, and when they are combined in a fixed ratio mass is called compound। ये कुछ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। वाटर का मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, इज मेड अप ऑफ द CO2 इज वाटर। कार्बन, वाटर में क्या है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। तो व्हाट इज द मिक्सचर? मिक्सचर इज a material containing 2 or more substance in any ratio is called a mixture। मिक्सचर में हम क्या करें कि जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को क्या करें, किसी भी रेशियो में मिला दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो तरीके का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी अगर आपने शुगर है डिजोल्व किया वाटर में, सॉल्ट डिजोल्व किया वाटर में, तो दे आर कंप्लीटली मिक्स टू ईच अदर। तो सच काइंड ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स इफ यू मिक्स टू सब्सटेंसेज और दे आर नॉट मिक्सड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, जो एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि अगर हमने सपोज कि आयरन नेल्स को सॉइल में मिला दिए, तो दे आर नॉट मिक्स कम्प्लीटली। और इफ़ यू मिक्स सॉइल इन वाटर, दे आर नॉट मिक्स कम्प्लीटली। तो सच काइंड ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। This is the differences between the mixture and the compound. What is the difference between the mixture and compound? Mixture, the constituent of a mixture may or be present in any ratio। मिक्सचर में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो किसी भी रेशियो में है, बट द कंपाउंड जो होता है उसमें जो रेशियो प्रेजेंट है किस में, फिक्स रेशियो बाय मास में। यहाँ पे जो प्रेजेंट है किसी भी रेशियो में। ठीक है। सेकेंड क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर मिडवे बिटवीन दोस ऑफ इट्स, क्या है, सॉरी, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर मिडवे बिटवीन द सब कंस्टिट्यूएंट। यानी मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें जो कंपोनेंट होते हैं दे आर नॉट लूजेज देयर प्रॉपर्टी। जैसे अगर आपने वाटर में चीनी मिलाया तो वो मीठा भी लगेगा एंड ऑल्सो लिक्विड, तो दे आर नॉट लूजेज देयर प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट रिमेन in the mixture, but the compound, when the two components combine, they form a new substance like hydrogen and oxygen. Both are the flammable gas, helping in a burning। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाईली फ्लेमेबल में चलते, लेकिन जब वो कंबाइंड होते हैं तो दे कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, आग बुझाने का काम आता है। ये हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर इज अ लिक्विड, तो प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। थर्ड है कंस्टिट्यूएंट मिक्सचर आर बी सेपरेटेड बाय इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर में हम सब्सटेंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द सिंपल फिजिकल मीन्स, but in the compound we cannot separate out by the sub component of a substance by the simple physical method। in that condition they need some special chemical techniques। ठीक है, mixture may be homogeneous, may not be, but compound always homogeneous, so they are the differences। ठीक है। what is the properties of a matter? तो मैटर को हम दो तरीके की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और ये मस्ट, क्योंकि ये मैं आप पूछा तो कभी नहीं जाता, बट हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इट द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन, जिनको हम उनकी कंपोजिशन या आइडेंटिटी को चेंज किए बिना मेजर कर सकते हैं, लाइक कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, दे आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, जो केमिकल चेंज जिसमें होता है, एसिडिटी, बेसिडिटी, तो दे आर द केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो उसमें से हम अलग अलग
चीज़ें यहाँ पढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एस लेंथ, एरिया, वॉल्यूम आर क्वांटिटेटिव इन द नेचर. Any quantitative observation or measurement is represented by the number of followed by unit in which it is measured. तो यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है कि हमें उस यूनिट को पता होना चाहिए जिससे हम कैसी क्वांटिटेटिव यूनिट मेज़र कर रहे हैं. क्वांटिटेटिव मैटर्स जो है या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम मेज़र कर रहे हैं, तो उस नेचर को मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स है और वो आपको पता होनी चाहिए. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. The International System of Unit, SI unit.